Hey guys, so I am back with another video. Okay, I hope you are liking the series. Do check out the playlist that I have made named UPSC Prelims Ultimate Hack. Okay, so this is another video. I think it is 11th video in that series. I hope you are liking it. Do watch every other videos also because they will with some learnings, and every video will feel like a nugget which will make you the entire picture clear. And in the real exam you have to apply all those things. Okay, they are not like one thing that you have to apply this, so it is like a complete book, okay, of different sorts. This is book of common sense. I will broadly gauge it and will not ascribe any fancy name, okay, because anyway the teaching ecosystem is full of that. The pedagogical has become far more fancy than it should be. Okay, so I will be teaching many concepts along the way. I will be teaching how to study also, and there will be certain nuggets that you have to decipher as we move along. And I will be taking question that is right from the horse mouth. I will be taking this question from UPSC, previous UPSC question. Going forward I will take up state PCS question. Going forward I will take up other relevant exams from UPSC like IES, CAPF, geoscientist, whatever that has certain overlap with the general studies or that has overlap with the civil services, because I think that I have read enough and I have figured out enough, and I have demonstrated it in the real time in exam hall enough to come up with certain framework which you must have, and which is sine qua non of cracking any exams. Okay, so let's delve deeper. So these are the questions which I will take, and while solving it I will unravel many of the key learnings along the way, and I will try to summarize it also. Okay, and if you want, rather watch it the video after one after the another so that you make more sense, because for many of you it will be new. You are not exposed to this. You are more exposed to reading, just like T board you are reading n number of boards, and there will be some marathon video regarding list of bodies, list of regulatory bodies, marathon video regarding regulatory bodies, uh, different kind of statutory bodies, whatnot. It's good you read, but you understand that this is the missing piece. This is the missing piece in you reading hell lot of and you cracking exam. So this missing piece I am trying to fit in the puzzle, okay, that UPSC puzzle, and you have to fit in. So I am here to bring that missing piece, so stick with me. So with reference to the T board in India, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. टी बोर्ड है मतलब टी प्रोडक्शन होता होगा इंडिया में कुछ, उसी का कोई एक बोर्ड बना दिया जो रेगुलेट करता होगा, जो गाइडलाइंस देते होंगे, जो हेल्प करता होंगे फाइनेंशियली और व्हाट नॉट. क्योंकि कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में है, उसका एक्सपोर्ट हो रहा है, उसका कमर्शियलाइजेशन है, बहुत सारी चीज़ें एंगल में है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ हम एक बना देते हैं एक इम्पॉर्टेंट. अब हर चीज़ों के लिए नहीं बनता. जैसे अभी मखाना बोर्ड बना है बिहार में, ठीक है ना, इन दिस बजट. सो मखाना भी एक फॉक्सनट, मखाना भी एक तरह का मतलब प्रोमिनेंस में आ रहा है. कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी प्रोमिनेंस थोड़ी बढ़ जाती है, जिसका एक हमारा इकोनॉमी में एक मेजर कंट्रीब्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर है ना हम उसके लिए एक बोर्ड गठित कर देते हैं जो कि एक्सक्लूसिवली इसी चीज़ से रिलेटेड देखेगा. अब कॉमर्स मिनिस्ट्री कितनी चीज़ें देखेंगी, कितनी सारी कमर्शियल प्रोडक्ट हैं, तो एक बॉडी बना देते हैं हम, और फिर वो एक लार्जर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देख रहा होगा या मिनिस्ट्री ऑफ कुछ भी देख रहा होगा रिलेवेंट, वो उससे मैनेज करती है. ठीक है, तो ये रेशनल होता है किसी भी तरह का बोर्ड का. एंड टी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंटिटी इन इंडियन
इकोनॉमी एज वेल एज इंडियन सोसाइटी एंड व्हाट नॉट। सो ये हमें पता होना चाहिए, यही चीज़ है। अब इसको देखते हैं। टी बोर्ड इज़ अ स्टैचुटरी बॉडी, ठीक है। तो स्टैचुटरी बॉडी क्या होता है भाई, हमें रटना नहीं है कि भाई ये स्टैचुटरी बॉडी है या नहीं है या क्या है, ठीक है। वो स्टैचुटरी होता है, नहीं तो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, नहीं तो क्या होगा, रेगुलेटरी बॉडी होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है। स्टैचुटरी बॉडी होता क्या है, कोई भी जो एक पार्लियामेंट के स्टैच्यू से बनी हो, ठीक है। तो होगा कोई टी फलाना एक्ट करके आया होगा किसी टाइम में, हो सकता है प्री कॉलोनियल ही हो, क्योंकि प्री कॉलोनियल भी बहुत ज़्यादा टी से रिलेटेड था, तो बन गई है स्टैचुटरी। कोई अलार्म बेल ऑफ नहीं हो रहा है इसके कारण। अगर यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल दे देता या कुछ पता नहीं जुडिशियल दे देता या क्वाजी जुडिशियल, मतलब कुछ भी, क्वाजी जुडिशियल भी ठीक है आई थिंक, हो सकता है, पर कुछ अलग देता तो हमें कुछ ज़्यादा अखड़ता। पर ये ठीक है, मतलब ज़्यादा इशू नहीं लग रहा है मुझे। आगे देखते हैं। इट इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी अटैच टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। अब ये यहाँ पर है ना, ये हो सकता है गेम करेंगे जो क्वान्टिफाइबल। मैं एक कंसेप्ट थोड़ा डील करना सकता हूँ साइड बाय साइड। क्वान्टिफाइबल होता क्या है, जैसे कोई भी चीज़ ऐसा हो, जब भी MCQ बनाते हैं, तो इज़ अनदर वीडियो कॉल MCQ सीक्रेट विद द थंबनेल वेयर आई एम ट्राइंग टू डिकोड कि MCQ सॉल्व करते कैसे, किसी भी तरीके का MCQ। सो यू वॉच दैट वीडियो। और अभी मैं MCQ का एक बता रहा हूँ कि अगर कोई MCQ बनाता है एग्जामिनर, तो उनको है ना, मतलब सही बनाना है तो सही लिख देंगे। स्पेशली ये कोई मैथ्स और कोई साइंस की चीज़ें नहीं है, ये दे आर डीलिंग विद GS स्टफ़, तो वो सही जो बनाना होगा उसको सही बना देंगे, और जहाँ गलत बनाना होगा तो वो कॉमन है ना स्वैप करेंगे। ये इनका ईजी है, इनके पास कुछ 10-20 पैंतरे होते होंगे, उसी बीच में से है ना ये कुछ अपना पेटी में से जुगाड़ लाते हैं, और उसमें है ना 2-4 नए नए ऐड करते रहते हैं हर साल। एंड UPSC पैनियर्स इट एंड रेस्ट अदर फॉलो इट, ठीक है। तो और उतना तो कर ही सकते हैं, साल में एक बार एग्ज़ाम लेना है, तो एक वो कुछ जुगाड़ लगा दिए, ठीक है। तो इनके 20-30 मैक्सिमम पैंतरे हो सकते हैं। अगर आप उनको कोड कर लिए, डिकोड कर लिए, देन योर लाइफ विल बी ईजी। तो उसमें एक जो बहुत ही मेन स्ट्रीम ही है वो स्वैप कर देते हैं। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, तो ये है ना कोई और मिनिस्ट्री होगा उसको ये स्वैप कर। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आपको डिटर्मिनिस्टिक बन जाना है कि यार जहाँ मिनिस्ट्री देखा हमारा दिमाग ख़राब होना शुरू हो गया। अब UPSC जानबूझ के भी वैसा, अब वो जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन उठाएगा जिसकी मिनिस्ट्री है ना आपको लगती नहीं है कि वो है, पर वो है। जैसे इन्वेस्टमेंट होगा, आपको लगेगा अरे यार ये इसमें आएगा, पर वो है। ये कुछ ऐसा देंगे एक्स जो आपको लगेगा ये तो इंटरनेशनल रिलेशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर होगा, पर वो कॉमर्स मिनिस्ट्री का होगा। ऐसे बहुत सारे हैं जो आपको लगेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का है, पर वो है कहीं और का। आपको लगेगा कि यार ये तो दवा दारू से रिलेटेड चीज़ है, ये होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, पर ये है मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइज़र का, क्योंकि मेडिसिन है इसमें इन्वॉल्व। तो ऐसे n नंबर ऑफ़ चीज़ें। इनफैक्ट आप ज़्यादा अंदर घुसोगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन से मिनिस्ट्री हैं, 2 मिनिस्ट्री वो आपस में है ना इंटरचेंजेबल लगते हैं। मतलब वो जनरली इसमें ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी ऐसा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइज़र भी ऐसा है। ऐसा नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है तो आपको लगेगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ही है, तो उसमें ऐसा वो एक कैमोफ्लेज करने वाला है ना, कोई कॉमन आपको दिखेगा भी नहीं मिनिस्ट्री जिससे ओवरलैप हो जाए। तो ये बहुत स्मार्ट है। तो मैं ना एक लेयर के अंदर है ना दूसरा लेयर जा रहा हूँ। एक लेयर तो सबको पता है कि भाई ये यहाँ पर स्वैप करते हैं, पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ वो स्वैप वहाँ करते हैं जिसका एक अल्टरनेटिव एक मिनिस्ट्री ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कोई भी एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस है, वो आपको लगता है कि इसका कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर से लेना देना है, कुछ प्रोड्यूस होता है, लेकिन स्टिल ये चीज़ें कॉमर्स में आ जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। क्यों? क्योंकि उसका एक्सपोर्ट का सिग्निफिकेंस ज़्यादा है, वो कॉमर्शियल क्रॉप है, इट इज़ अ कैश क्रॉप, इट इज़ नॉट अ फूड क्रॉप। तो ये कैश क्रॉप है, तो ये कॉमर्स के अंदर आने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। कोई एक मेडिसिन है जो हेल्थ से ज़्यादा ना फर्टिलाइज़र में आ जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइज़र। ऐसे मैं ना आपको दिखाऊंगा, ऑन टॉप ऑफ माइंड मेरे माइंड नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू ही दिखाऊंगा, जहाँ पर ये है ना बहुत ईजिली अल्टरनेटिव होता है। तो मतलब एक कॉमन मिनिस्ट्री है पर एक और मिनिस्ट्री हो जाएगा, जैसे दीपम हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। आई विल शो इट कि कहाँ उन्होंने ये गेम खेला है।
तो एक मिनिस्ट्री का एक कॉमन मिनिस्ट्री रहता है, आपको लगेगा ये इसके लिए है, पर होता ये इसके लिए है। तो दिस इज़ अ कॉमन प्लॉय, दिस इज़ अ कॉमन प्लॉय ऑफ यूपीएससी। और इसका ये भी समझते हैं कि कोई ऐसा रहेगा जो आपको लगेगा नहीं कि इस मिनिस्ट्री का है डायरेक्टली, पर वो थोड़ा हटके जो मिनिस्ट्री है जो कि है एक्चुअली में आंसर, उसका दे देंगे कि इट इज़ अटैच टू दिस, जो आपको लगता है इसके कैसे हो सकता है, और आप इसको मारोगे गलत पर निकलेगा सही। तो वो 2-3 मिनिस्ट्री हैं जिसका है ना, मतलब थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। तो ऐसे 3-4 ही के कपलेट हैं। मैं एक वीडियो बनाऊंगा अगर आपको चाहिए होगा, जहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि देखो ये जो चीज़ें हैं लगती इस मिनिस्ट्री के, पर होती उसकी है। आई थिंक कोई भी जो सीरियसली प्रिपेयर किया होगा उसको ये कहीं ना कहीं उसने ये पढ़ा होगा। तो आई होप कि आप ये देखो आगे चल करके। सो आप यहाँ जो देख रहे हो अटैच टू दिस, आपको है ना थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। यह फार्मर वेलफेयर, ये थोड़ा है ना कैश क्रॉप है, तो क्या यही हो सकता है? क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ही हो सकता है या कुछ और हो सकता है? तो इसमें आपको डाउट आना चाहिए 50%। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द टी बोर्ड हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन बैंगलोर। यहाँ आ गया, आपको मिल गया। ये मैं अभी भी नहीं बोला हूँ, मैंने बोला है यहाँ पर आपको डाउट आना चाहिए। इट शुड गिव राइज टू सस्पिशन। बट जो मैं अप्रोच एक फ्रेमवर्क फॉलो करता हूँ वो ये करता हूँ, और आप उसके पिछले वीडियोज़ में देखना आप कि उसमें मैंने कैसे सॉल्व किया है क्वेश्चन को, जहाँ पर मैं पहले एक डेफिनेट यस को पकड़ता हूँ, जैसे ये 1 लग रहा है मुझे, यस, डेफिनेट यस, और या फिर डेफिनेट नो को पकड़ता हूँ, और फिर वहाँ से मूव करता हूँ लैडर, और कोशिश करता हूँ आंसर तक पहुँचो जहाँ पर मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर मुझे इशू आ रहा है। टी बोर्ड का जो हेड ऑफिस है, हेड वही होगा जहाँ पर टी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता होगा। अब आप ये बताओ, बेंगलोर में टी सबसे ज़्यादा होता है क्या, या कुछ भी ऐसा हो जहाँ पर टी हो? मतलब दार्जिलिंग मैंने सुना है, दार्जिलिंग की टी बहुत फेमस है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे हैं जहाँ टी, असम का मैंने सुना है। तो ये रीज़न जो है वहाँ होना चाहिए। मतलब बेंगलोर साउथ इंडिया में मैंने टी, तो कॉफ़ी प्लांटेशन ज़्यादा मैंने सुना है। एक और ये काम करते हैं कि किसी और चीज़ का होगा उसका स्वैप, मतलब होगा कॉफ़ी का, तो वो टी में डाल करके बेंगलोर डाल देंगे। बेंगलोर में मतलब चिकमंगलूर आई थिंक एक जगह है जहाँ पर कॉफ़ी प्लांटर्स काफ़ी होते हैं। सो कॉफ़ी हो भी सकता है। टी कॉमन सेंस लगाओ यार, ये नॉर्थ ईस्ट वाले जो रीजन है ना ईस्टर्न इंडिया का, ठीक है, ईस्टर्न इंडिया का जो है रीजन, ये वाला एरिया यहाँ होगा ना, ये यहाँ बेंगलोर में होगा। ठीक है, तो आप खुद ये सोचो कि यार यहाँ पर इशू क्रिएट कर रहा है बेंगलोर, ये तो नो है, इसने ना ऑब्जेक्टिव खेला है। टी बोर्ड का हेड ऑफिस, हेड तो नहीं होगा, रीजनल ऑफिस हो भी सकता है, हेड नहीं होगा, तो हेड ऑफिस बेंगलोर नहीं होगा, ये ईस्टर्न इंडिया जो है यहीं होगा, तो इसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने ऐसा भी कंफ्यूज, जैसे मैं एक्चुअली बता दूं, बाय नॉलेज इट इज़ इन कोलकाता। अगर यूपीएससी स्टैटिस्टिक होता तो यहाँ दार्जिलिंग भी दे के खेलता है, लोगों को लगे यार दार्जिलिंग टी बहुत पड़ी है तो कहीं वो हो जाएगा। तो जनरली हेड ऑफिस अगर दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है तो हेड ऑफिस थोड़ा हेड क्वार्टर में ही डालेंगे, कोलकाता में ही डालेंगे। ठीक है, अगर सिलीगुड़ी में कुछ चीज़ है कोलकाता ही में डालेंगे, सिलीगुड़ी क्यों डालेंगे? हेड ऑफिस भाई थोड़ा अच्छा सिटी भी तो होना चाहिए, थोड़ा रहने होने का, भाई एक तरह से ब्यूरोक्रेटिक ही प्लेस है ये, तो ये आपको आना चाहिए। इन्होंने एकदम पूरा अलग किया, एक तरह से कॉफ़ी से मैच करने की कोशिश की। ठीक है, तो इसको तो डेफिनेट नो। अब ये 3 हटा, जहाँ जहाँ है ये 1 3 ये हटा। अब 4 को तो इन्होंने ऐसे ही मार लिया सही, 3 हटते मात्र। बोर्ड हैज़ ओवरसीज़, अगर ये नहीं करना रहता तो हमें डाउट भी होता है, पर अगर सपोज़ इन फ्यूचर एग्ज़ाम्स 4 से गेम चेंजर हो रहा है, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं हो रहा है। इस क्वेश्चन में 3 डेफिनेट नो आते ही आप 1 ए और सी एलिमिनेट हो गया, फिर बच्चे इसमें और इसमें, तो 4 तो ऑटोमेटिक सेम हो गया। तो ये गेम चेंजर नहीं हुआ ये ऑप्शन। पर अगर होता भी ना गेम चेंजर, फंडे ये कहते हैं कि भाई कोई भी चीज़ के है ना बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं ओवरसीज़ उसी ऑफिसेज होते होंगे जहाँ पर एक्सपोर्ट ज़्यादा होता होगा। ठीक है, तो दुबई में होता होगा, मॉस्को में होता होगा। ऐसे भी ये सब होम ग्रोन है नहीं मॉस्को, वहाँ बाहर टी बहुत कम जगह ही मिलती है, तो होता होगा इसमें। तो क्या पता एक छोटा सा डेस्क ही खोल दिया हो। वाई टेक रिस्क? ये कुछ बहुत ऐसा तो नहीं दे दिया ना, आइसलैंड तो नहीं दे दिए हैं कि भाई आइसलैंड में बना दिया, डेनमार्क में बना दिया है, पता नहीं कुछ
एक अजीब पिकुलियर नाम दिया, दुबई मॉस्को ठीक है, रशिया हमारा वो चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये अगर 4 पर अगर गेम चेंज हैंग भी हो रहा होता ना, 4 पर अगर पूरी गेम निर्भर भी हो रही होती है ना हमारी, फिर भी स्टिल हम ये दुबई और ये वाले को सही मारते अगर कोई एग्ज़ाम में इस टाइप का हो, क्योंकि जॉनर ऐसा है इसका गलत होना मतलब बहुत कम है, ठीक है ना। ओवरसीज़ ऑफिस है, रीजनल ऑफिस बहुत सारे हो जाते हैं, कोई पंगे नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। आप इसको आराम से सही मार के आना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, पर ये है। तो अब बचा हमारा गेम चेंजर क्या हो रहा है, 2 और 1। 1 तो भाई एनी डे 1 विल टेक प्रेसिडेंस ओवर 2। 1 में क्या दिक्कत है, ये स्टैचूटी की जगह पर क्या बना दोगे आप उसको, तो 1 तो सही है ही। तो ये ऐसे ही ख़त्म हो गया कहानी, ऐसे ही ख़त्म हो गया 1-4, ठीक है। इतना जो सो कॉल्ड लोग गलत हो रहे थे ये वो, इसका मेन समरी ये है कि जब भी ऐसे सवाल आए, जो मैंने इंटरेक्ट किया अपने दोस्तों से या सम ऑफ माई जूनियर्स है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो क्या करते हैं, जो ये पूरा मैं ना एक राम बांध दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना, इसको गांठ बांध करके मतलब समझ लो, इसको बार बार रिप्ले करो, ये वाला पार्ट जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ कि ये जब भी सवाल होता है ना, साइकी क्या होता है, आप टी बोर्ड है, 2-2 ऑप्शन का खेल हो रहा है, आप है ना गलत चीज़ को पहले एलिमिनेट करते हो, कोई एक पढ़ते हो आपको बेचैनी छा जाती है। जैसे आप है ना 2 मान लो कि कुछ भी आपने ऐसा देखा हो, मान लो कि हाँ अधिकतर लोग क्या करेंगे, ओवरसीज़ ऑफिसर्स ये गलत, 4 गलत, 4 को हटाओ, 4 हटाओ, यस 1-3, आगे बढ़ गए यार, मस्त होकर के आगे बढ़ गए। मैं आप पूरा पढ़े ही नहीं, मतलब आप सबको थोड़ा प्रोपोर्शनेट वेटेज तो दो, 10%, 23 के स्ट्रक्चर्ड वे में तो फॉलो करो, ऐसे स्ट्रक्चर। वो क्या करते हैं, कोई एक चीज़ उठाते हैं और उसको मार के हटा देते हैं। वो हम एक स्टेटमेंट कोई पढ़ेंगे और जैसे 2 हटाएं, और जानबूझ के ऐसा करते भी हैं। ये जो एग्जामिनर है ये एक ऐसा स्टेटमेंट देता ही है कि आप उसको पहले देख करके हटा दो और डायरेक्ट आंसर पहुँच जाओ। इतना हलवा है क्या यूपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम ऑफ रिजेक्शन है, जो मैंने अपना एक वीडियो में बताया हुआ हूँ कि एग्ज़ाम ऑफ रिजेक्शन है, एंड व्हाट इज़ द एल्गोरिदम ऑफ एग्ज़ाम ऑफ रिजेक्शन, आई विल एक्सप्लेन इट इन माई नेक्स्ट वीडियो, ठीक है ना। तो ये एग्ज़ाम ऑफ रिजेक्शन है, यहाँ पर है ना लेयर पर लेयर है ना वो ट्रैप सेट करते हैं ताकि बच्चे छठे, उन्हें 10 लाख में से 100 को ही लेना है। सो एग्ज़ाम ऑफ रिजेक्शन है। और आप सोच रहे हो कि भाई आप एक ऑप्शन रिजेक्ट करो, वो हो जाएगा 100 क्वेश्चन में, ऐसे 5 क्वेश्चन में हो जाएंगे, 95 में नहीं होंगे, ठीक है। तो आप इतना जल्दी जंप नहीं करो, वो जानबूझ के, जैसे मुझे लगता है ये अभी जस्ट मुझे ये नोटिस हुआ, ये 4 को देख के आधे लड़के कहेंगे ये गलत है, और 4 हटाएं, अब पहुंच गए आंसर पर, ठीक है, ऐसे करते हैं। तो ऐसा नहीं है, इसी तरह कुछ यहाँ पर उनको कुछ बहुत चुभेगा, कोई भी चुभेगा 2, और हो सकता है 2 हटाएंगे और डायरेक्ट पहुँच जाएंगे विदाउट देखे कि भाई 3 भी है कुछ। तो इसमें से बहुत लोगों को मैंने देखा है, ऐसे मैं आगे भी क्वेश्चन में डेमोन्स्ट्रेट करूँगा, वो किसी एक को बहुत जल्दी हटा देते हैं, ये नहीं देखते हैं कि भाई ये हट रहा है तो कोई और भी तो है। अगर आप मैंडेट देखोगे हमेशा ये रहता है कि विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ये है ना एक कॉमन रखता है, एप्रोप्रिएट आंसर, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, मोस्ट एप्रोप्रिएट। राइट आंसर रॉन्ग आंसर नहीं है, कौन ज़्यादा राइट है। तो वो तो कुछ तो ऐसा वेग डालेंगे ही जो थोड़ा सा आपको कम राइट लगेगा। अब वो जो कम राइट लगेगा आप यार उसको फटाक से ना पूरा गलत मान करके, और आप परसेंटेज वेट नहीं करोगे, कोई 80% राइट है, कोई 70% राइट है, कोई 90% राइट है, आप 80 वाला को पकड़ोगे और पहुंच जाओगे आंसर पर, ठीक है ना। मैं दिखाऊंगा ये वाला एंगल को आप ध्यान रखना, एंड इन फ्यूचर वीडियोज़ आई विल शो इट, आई विल एक्सप्लेन इट कि यार ये जो टेक्निक है, ये फैलेसी जो है, दिस फैलेशियस थिंकिंग, हाउ इट विल लीड यू टू जस्ट वेस्ट अनदर ईयर, ठीक है ना। दैट इज़ हाउ ब्रूटल द कंपटीशन इज़। सो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आप है ना बस किसी एक को गलत करके है ना तुरंत मत चला जाओ, ये गलत हुआ भाई हम यहाँ पहुँच गए, ऐसे मत करो। आप सबको है ना थोड़ा वेट दो, सबको थोड़ा थोड़ा आप पढ़ो कि ये क्या है, ये क्या, तब पहुँचो। जैसे मैंने इसमें स्ट्रक्चर किया, मैंने पहला पढ़ा स्ट्रक्चर स्टैचूटरी, ठीक है, स्टैचूटरी नहीं होगा तो क्या होगा, उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, यू गो बैक प्रीवियस, ठीक है ना, आपको एक प्रोसेस से आएगा। मैं सम अप कर रहा हूँ अभी। फिर यहाँ मैंने बताया, उसको भी समझाया, यहाँ डेफिनेट नो है, ये निकला, यहाँ से आपको निकलना है, 3 को हटा कर निकलना है, ये है यहाँ पर, ये ज़्यादा है इसके कंपेयर में, 3 इज़ मोर रॉन्ग दैन 4,
ये वेटेज आपने दिया कि बस आपको चुल मच गई और इसको उड़ा दिया सीधा ऊपर ऊपर देख के। जनरली एग्ज़ाम के लास्ट में आपको ये सब क्वेश्चन मिलता है तो ऐसे ही आप उड़ाते हो, और उड़ा के आप उड़ जाते हो। ठीक है, तो इसको ध्यान रखो कि कैसे आपको करना है। और ये आप, मैं 20 मिनट ले रहा हूँ, 25 मिनट दे रहा हूँ एक एक क्वेश्चन, मैं उसके है ना बहुत सारे लेयर्स को अनपैक कर रहा हूँ। आप वो सारे लेयर्स को समझो और एक बार ड्रिल कर लोगे, देन आपको बहुत ईजी होगी, बहुत फास्ट आप है ना इस चीज़ को कर लोगे। जैसे मैं, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन 45 सेकेंड्स, ठीक है ना, बिकॉज दिस थिंग्स आर ड्रिल्ड इन माई हेड। मेरे को चमक जाता है, जिसको बोलते हैं ना ये कुछ चीज़ें हैं चमकनी चाहिए, इस साइन लाइट, ठीक है, और ये चमकने लगेगी तो किसी भी एग्ज़ाम में आपको काम आएगा। ये एग्ज़ाम में ज़्यादा लेयर हैं, कोई और एग्ज़ाम में और छोटा लेयर होगा। बड़े लेयर को आपने अनपैक कर दिया तो सिंगल लेयर तो ज़्यादा इजीली अनपैक हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज़ द इंटायर रैशनल। क्या मिस्टेक्स हो सकती है उसको भी मैंने बताया। ठीक है ना, सो डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, डू लेट मी नो हाउ यू लाइक इट। ठीक है ना, लेट मेक इट मोर इंगेजिंग। I have fun bringing it out to you. I hope you have fun going through it. I hope I am making this session very interactive, and see you guys very soon. Till then, share it with as many guys as possible so that larger community gets benefited, and जो misguidance है of UPSC preparation, I want to demolish that, and I want to save lots of efforts of so many people who are misdirected, and people learn it through heat and trial, and I am here to teach you everything, and let's make things far more efficient. ठीक है, so do subscribe it and do watch all other videos in the playlist, and I will be back soon with another video, another fascinating video. Do watch that video also. Okay, so bye bye, have a good day, take care.